ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज श्रेया तिवारी एंड आज आपके समक्ष हम ला रहे हैं सफाई और सच्चाई। जी हाँ, एलएनएफ में गर्मा गर्मी का माहौल है, इलेक्शन है सर पर और हमारे साथ जुड़ी हैं आज दो पार्टीज जो चाहती हैं कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को बटोर सके। तो क्या ये अपने आंसर्स से अपने वोटर्स को रिझा पाएंगे या फिर इनके नकली चेहरे हमारे सामने उतर जाएंगे? तो चलिए देखते हैं आज के इस मीडिया ट्रायल में। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू डिक्टेट द रूल्स एज डिक्टेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। स्टार्टिंग ऑफ, who are eligible to fill the form. All the students who are interested to take part in the Panchayat Samiti had filled the form. Once all the nomination forms are received, the Election Commission will announce a list of selected candidates which has already been announced. Further, how can they make the party? Once formed, once forms are received, selected students can make parties by choosing among candidates of their choice. A party can have 3 candidates only plus one optional party volunteer. Be gender diverse. For example, if there are 2 boys, there should be at least one girl member. Next, as we move on to the guidelines which are very important, do not disturb the ongoing classes. Promote through verified means only like calls, meets, LNF class time groups. Every party has to be prepared with a speech with their party agenda, which will be questioned in the trial. Now, who is eligible to vote? All the students of Learn and Fun, including the members of the parties, are eligible to vote. And finally, who will be winning the party elections? So, the party with maximum votes will win. The winners will be a part of the organizing committee and will rule till March 2026. And the most important thing that the party should admire are the duties. Winning party will be given responsibility to organize upcoming LNF events like parliament sessions, moot court, and other whichever they have put them in the manifestos. Lastly, they are required to set a landmark for the others by showing teamwork and discipline. Also, be awarded at the session at the end of the session for sure. Now, if found to be against discipline, then the member or voter shall not be a part of the election process. Now, I conclude the guidelines as per the Election Commission. Beginning with the trial, I hope you all are ready. All the best. Thank you. So, in front of me, I have Yuva Pragati Samiti, and the party members are Ishani Tiwari, Ahana Sehgal, Medhansh Khandelwal, and Khushal Agarwal. So, beginning with my first question, uh, first of all, so tell me exactly the meaning of Yuva. Who would like to answer? Okay. So basically, our symbol symbolizes youth, means yuva. The center Y, as per our logo, you can see at the poster, we have a Y in the center of white color. That's our party's main focus, youth, and it's made up of yuvas like that. So here Yuva means the youth amongst all the children we see in this generation. So we basically try to promote various awarenesses like our cultural things, and like there are less people who know about Indian culture, and more like more children know about Mughal history. So like it's in our books also. So hereby, Yuva Pragati Samiti promotes many things like Indian culture, activities, and speaking skills that is in form of debates and many competitions. Thank you so much. I think my question was answered aptly, but I would like to add a few points of information. Yuva is the age group of 18 to 30 years. So, a Yuva is a youth who falls in the age group of 18 to 30 years and should be an informed, enthusiastic member of our country. नाउ मूविंग ऑन, आप लोगों के पोर्टफोलियोज बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी क्रिएटिवली आपने उनको नेम आउट किया है। फर्स्ट बीइंग पढ़ाई मंत्री एंड सोशल जानकारी। तो देखते हैं आपकी जानकारी कितनी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी ईशानी जी कि एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरपंच जिसके बारे में आप जानती हो, जिसने कोई ऐसा कार्य करा हो जो कि एक लैंडमार्क सेटिंग हो।
Okay, so like I'm still learning, and I hope that I'll learn more. So like till now, whatever I have read in my textbook, so there are like only animated characters as Sarpanch and the Punch. So they have been setting like very much landmarks which have got a great impact of on the villages. So like I studied in my SST book that a Sarpanch who developed a whole village, and then like he maintained the road, and like it was the first village where the roads were perfect and the wells and all the people were educated well. Like I don't remember the name perfectly because I read it year ago, but still, if you would like to, encourage me and enlighten me if you have any examples for that, so I can learn. श्योरली विल डू दैट बिकॉज सभी वोटर्स की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये मैसेज आप सभी के पास प्राप्त हुआ था जिसमें हमें कुछ हस्तियों के बारे में बताया गया था जैसे कि गैज मीनाक्षी ट्रांसफॉर्म मुखरा के विलेज थ्रू इनोवेटिंग सॉल्यूशंस लाइक डिजिटल लाइब्रेरीज सेकंड बीइंग सरपंच फ्रैंक विएगास and deputy sarpanch sharmila gracias led a landmark initiative by convening their village panchayat first ever Mahila Gram Sabha. So as I move on, I hope you got your answer, Ishani. Right. So as I move on, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपकी पार्टी में एक वॉलंटियर है उस वॉलंटियर को आपने एक मिनिस्ट्री की पदवी कैसे दी वो भी एक ऐसी असेंशियल मिनिस्ट्री जैसे कि फाइनेंस तो आपको नहीं लगता कि आपने जो रूल्स या गाइडलाइंस सेट हैं उनका उल्लंघन किया है चलिए आपको ही मौका देते हैं First of all, they have said me that you can do the ministry this, and they have said that you can't be disciplined in charge because I am not disciplined more than the others. For example, like Kushal is our discipline in charge, and I am the uh, financial minister because there is none post is left to give me. सी आई स्टिल डोंट गेट द आंसर बट द पॉइंट इज कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया बिना इलेक्शन कमीशन को सिग्निफाई करे या किसी एप्लीकेशन के थ्रू उनको कम्युनिकेट करे मैम सारे अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं और ये हमने गलती से छोटी सी मिस्टेक कर दी हालांकि हमें इसे फाइनेंशियल कैप्टन बनाना था हमने इसे एक मिनिस्ट्री दे दी सो वी अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक बट वी मेक श्योर टू वर्क अपॉन इट and we make sure that nothing happens even after. Well, seeing that Medhansh was, actively participating in mathematics and contribution in our team, so hereby noticing all this, we have given him this ministry post. And secondly, that we had requested and even asked for it, so it's like approved by the. कैन वी सी अ रिटन डॉक्यूमेंट Well, it was orally approved. ऑल राइट जनता इस बात को नोट करे आगे बढ़ते हुए हम आगे चलना चाहेंगे जनता जानना चाहती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत लेट सबमिट हुआ ऑलमोस्ट एक दिन पहले तो इसका कारण हम जानना चाहेंगे आपने बोला था आपको सो वी आर सॉरी फॉर द डिले बट ऐसा कहते हैं कि अच्छी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है हमने लाइक अलग अलग जगहों से सीख के अपने पोर्टफोलियो को सबमिट किया है तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग गया बट वी हैव मेक श्योर दैट आवर पोर्टफोलियो इज़ कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड तो दैट्स व्हाई हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई, बट वी हैव सबमिटेड बाय द with the permission of the election commission that we might get delayed and we got a timeline. So we submitted in the timeline. Okay, can I Yes, so yes, there was an unexpected delay, which was not expected, obviously. So we tried our best giving it at the utmost times. So, however, like we wanted the best portfolio from our side and wanted to, give more
good knowledge to the people and the yuva especially. And hereby, like, yuva is the main focus, so we wanted that they get the best information from our side, so we took the time, but however it is already submitted to you. तो कहने की बात ये कि कल को अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो वो भी आप देरी से ही करेंगे। चलिए, वो तो हम आपके जीत के बाद ही देख पाएँगे। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा खुश हैं ये जानकर कि आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत सुंदर प्रेज़ेंट हुई है। एंड नॉट जस्ट यू गाइज़, द अदर पार्टी हैज़ आल्सो नेल्ड इट ऑन द थीम एंड द कलर स्कीम एंड द अट्रैक्टिव कलर्स। So I am very glad. And even the logos have been designed very mindfully. Mindfully से मुझे याद आता है कि जो आपका लोगो है, उसपे बहुत सारे छोटे लोगोज़ हैं। तो आपको एक लोगो बनाने के लिए कहा गया था, उसमें आपने बहुत सारे लोगोज़ को इंक्लूड करा है। क्या आप उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा-सा लाइट पुट करना चाहें? हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोगोज़ हैं, टोटल 7 सिंबल्स हैं। वो 7 सिंबल्स अलग-अलग चीज़ें रिप्रेज़ेंट करते हैं जो कि एक यूथ के अंदर होनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पर एक पेन है। पेन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लिखते हैं और उसी से हम पढ़ते हैं, मतलब उसी से हम याद करते हैं। तो पेन एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। फिर हमारे पास है कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट्स एआई। एआई रिप्रेजेंट करता है कि आने वाली जनरेशन के अंदर एआई ही सब बन जाएगा। सो एआई को हम सिग्निफिकेंस देते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइमर। वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास हमारे ज़िंदगी के अंदर टाइम का महत्व होना चाहिए कि हमको हर एक टाइम पर हर एक चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन जो बताता है कि एजुकेशन की डिग्री। उसके बाद आता है बुक्स। बुक्स है कि एजुकेशन जिससे हम पढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ कि आने वाले समय में यूथ ही हमारी कंट्री को ग्रो करेंगे। उसके बाद साइंस लाइक इफ एग्जाम्पल इफ वी फॉल इन अ पिट सो physics help us to get out of in the pit. These are the 7 symbols. That was very thoughtful. I would like to move further because understand that we have a time constraint also. So आपके कुछ मैनिफेस्टोज मैंने बहुत डिटेल में पढ़े हैं एंड उसमें से एक है एनकरेज डिबेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स अमंगस्ट ऑल। तो अगर ऐसी सिचुएशन में डिबेट एक फ्यूरी में बदल जाए तो एज अ शांति मिनिस्टर खुशहाल आप क्या स्टेप्स लेना चाहोगे उस डिबेट को वापस अलाइन करने के लिए? मैं स्टेप्स लेना चाहूँगा कि जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है पहले मैं वो देखूँगा। फिर उसके बाद अगर वो लड़ाई गलत चीज़ पे हो रही होगी तो मैं उनको रोकूँगा। पर अगर वो लड़ाई जैसे कंट्रोवर्शियल हो रही होगी तो मैं उसको रोकूँगा कि पहले आराम से बात कर लो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना, ऐसे लड़ाई करने पे मत आओ। ऑलराइट, फर्दर आप लोगों ने कहा है कि आप इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग को इक्वली प्रमोट करना चाहते हैं। आई बिलीव इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग मतलब स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं, ठीक है? तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, एनकरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? टू टेल द पीपल दैट हिंदी शब्द एनकरेज एनकरेज को हिंदी में प्रोत्साहित बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप अच्छे से सभी वोटर्स को प्रोत्साहित कर पाए। आगे बढ़ते हुए आपने जो ये इंग्लिश एंड हिंदी का ग्रेट इनिशिएटिव है सबसे पहले, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों ही लैंग्वेजेस को आप अच्छे से इंक्लूड करके चलें और दोनों का इम्पोर्टेंस आप साथ में एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ जीके क्विज के बारे में बात करी है, ठीक है? तो देखते हैं आपकी जीके कितनी अच्छी है। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अभी जो जनरल इलेक्शंस थे वो लेटेस्ट कौन से ईयर में हुए थे? एनीबॉडी? लेटेस्ट जनरल इलेक्शंस। हाँ जी। I think so. It is in this year only, 2025. अकॉर्डिंग टू मी वो इसी ईयर में हुए थे, 2025 में। One second. जी। I have a doubt that which state or whole India? होल इंडिया जनरल इलेक्शंस।
तो जनरल इलेक्शंस आप लोगों ने गलत बताया है, 2024 में हुए थे, जो कि है पिछले साल। इसके आगे एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्रिकेट से आप लोग ऑब्वियसली बहुत कनेक्टेड रहते ही होंगे, तो अभी वुमेन्स क्रिकेट कप किसने जीता है? जो इंडिया। करेक्ट। तो चलिए, आई होप कि आप लोग खुद भी सीखते रहेंगे और वोटर्स को, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको भी नई नई इन्फो ला के देते रहेंगे। अब इस पे हम आते हैं, 4 फोकस पॉइंट्स, जो आपने 4 फोकस पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है? उसमें आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा है, प्रोटेक्ट नेचर से रिलेटेड, ठीक है? तो प्रोटेक्ट नेचर में आप कैसे उसको प्लान कर रहे हैं? ऑल्सो आपको एक चीज़ और पे लाइट देनी है, एक ज़ीरो पेपर प्रमोशन इलेक्शन एक इनिशिएटिव है जो एक सभा ने अनाउंस किया था, एक सरपंच ने अनाउंस करा था अपनी विलेज में, ठीक है? तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सो हमारा थर्ड फोकस पॉइंट है, सेकंड फोकस पॉइंट है टू स्प्रेड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट नेचर। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आजकल के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ, हम इतना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम बस नेचर से लेना जानते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। तो आज के टाइम में हम उस यूथ को समझाना चाहते हैं कि हाउ नेचर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब जैसे आपने बोला कि एक सरपंच ने किया था नो पेपर इलेक्शंस, उसमें उसने एक नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप लिया था ताकि वो पेपर्स ना यूज़ करे। पेपर्स ट्री से ही बनते हैं, सो इसने कैसे भी किया हो, वी डोंट नो दैट एक्चुअली, बट उसने नो पेपर यूजेज की थी जिसके एक छोटा स्टेप था पेपर को वेस्ट करने से बचाने के लिए। इसलिए तो हम जो भी हमारे फेलो फ्रेंड्स और सपोर्टर्स हैं, हम उनको बस एक अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट नेचर, प्लास्टिक कैसे कम यूज़ करें, अगर करना है तो कैसे उसको रिसाइकल कर सके, लाइक ऑल ऑफ दैट। Can I say something? आई जस्ट मूव। राइट। सो आप लोगों ने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा ये ज़ीरो पेपर का इनिशिएटिव, बट क्या ये इस इलेक्शन में फॉलो हुआ है? ये हम जनता पर छोड़ते हैं, जनता डिसाइड करेगी कि ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। Can I add? Yeah, yes, sir, I have. ऑलराइट। So, firstly, that we all know it's not only just our responsibility, but also the people of India, and moreover, not just India, the whole world has nature. Every country has at least millions of trees. So basically, there are some examples that I have. So like I've researched on it. So a girl, she made a solar power ironing machine. So basically, like you must have seen that press wala bhaiya. So he uses coal, so it gets, coal gets waste, and when like much of the coal gets waste. So to prevent that, the girl made a solar power ironing machine. So it was just like a moving cart with solar iron, which could press the clothes. And secondly, the initiative is again by a girl. She had made slippers that we wear every day from the rubber of the car tires. So this both the things are very significant in our lives. So we should promote basically using those slippers instead of wearing plastic slippers. So we should get enlightened with these facts. तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग इन सब चीज़ों को खुद भी अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, एंड नेक्स्ट जो भी आपकी एक्टिविटीज़ जो आप प्लान करें उसमें इसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। नाउ फर्दर देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क टू कुशाल स्पेसिफिकली, दैट व्हाट इज योर टैगलाइन? लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, दिस इज आवर टैगलाइन। ईशानी जी, आपसे एक सवाल। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करी थी कि आप उसके बारे में कुछ वर्कशॉप्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, वो आप बहुत शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन कीजिए। So yeah, like nowadays all the schools have like this a program which is also done in my school. So basically it has modules about daily life ethics, manners, and how we can improve ourselves. So basically there is like one lesson going on like Atma Shraddha.
So it tells about how a person should be and how should he behave, and like how should they take part and participate, and be social and not that much that you go in wrong things. So this is financial literacies activities will also be done like on this. ऑलराइट, तो आपके कुछ फोकस पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि आपने सपोर्ट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड एंगेजमेंट के बारे में बात करी है। तो मुझे ये जानना है कि अगर आप लोग ऑपोजिशन बनते हैं, ठीक है, तो क्या ये सब कमिटमेंट्स रहेंगी या फिर ये सब कमिटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पार्टी विनिंग पे ही है? Yes, this commitment will take forward, and we are planning that after when if we win the election, we are planning that we will run a workshop that we will go outside and clean our nature. So if you win the election. No, if we will win the election, and we have motto like uh, we have learning today leading tomorrow. अगर आज हम जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज हम हार गए तो हम सीख ही रहे हैं. We will try our best and we will work on upon ourselves. Thank you. Very well said. I hope the spirits remain high, and I'm very, very, I would like to admire specifically the points that you have put in activity based engagement and support system. And overall, your report was very nice. The focus points were to the point and were absolutely nailing it. So, thank you, party, for being a part of the session. सफाई और सच्चाई का पहला सेगमेंट हम यही खत्म करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं उन पे खड़े उतरे, पर्सनली भी और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ. थैंक यू.